So, can we start now, Preeti? So, hello everyone, and welcome to our podcast, Share and Care today. And today I have a very eminent speaker, a very young, dynamic teacher, a parenting coach, and she is going to tell us about emotional wellness, especially in the homemakers, because today we find homemakers is a whole lot new. You can call it a career today, and they are working 24/7. They are so important in our lives, and they have to be emotionally well, so that the family is also well. So we're going to talk about emotional wellness in homemakers today. This is my podcast, Share and Care. So welcome, Preeti. Thank you, ma'am. Thank you so much for inviting me on your podcast talk show. And all the best for to you to starting this again. I remember last time also I came for this talk show for the teachers training, I think. And Yes, now we again gear up for this. yes. So all the best to you for this. Thank you, Preeti. And this is a sign of emotional resilience. Like I started it some months back, and then there was a lot of there was some. I had to be very busy with some other things, chores in the house and my workshops, and then this took a this took a sort of gap, and then I forgot all about it. Then all about in the sense how to go about and start it. So today, thank you for helping me, and we restarted it and we rejuvenated it, and this is emotional resilience, friends. Like when you have a fallback, when you have a setback, but you bounce back and you come back to do the normal thing, right, Preeti? Absolutely, absolutely. And Preeti hats is off to you also for very resilient. Preeti is a very resilient young lady. She's had many ups and downs in her life, small downs, but then she's always managed to bounce up again. Would you like to share anything about yourself, Preeti? sure, ma'am. About my personal life, I am a girl from a middle class family. I was bring and brought up in Delhi, and then my whole studies are from Delhi only. Then I came to Greater Noida and started my career in teaching. And after that, I got married, and yes, many ups and downs were there in my Yes, personal life also and in the professional also. yes, During the time of COVID, I lost my husband. yes. And at present, I'm having a 10 years old daughter also. So for her, I'm just keeping myself emotionally strong to Correct. how to cope up with the challenges of the life and moving forward for. Yes. So this podcast is a way to keep ourselves emotionally well, because we both of us love talking and meeting people and helping and giving away to the society whatever little we can. So what is emotional wellness according to you, Preeti? Ma'am, firstly, I would talk about the challenges. Most of the people they face the challenges, especially if I talk about ladies, that they are all the time into this mindset that I have to take care about my family, I have to take about my children. What about my home? और उस चक्कर में ना they don't even take care of themselves. उस वजह से they get into the guilt, depression, anxiety, and many other problems which directly affects their health also. So it's very important for the ladies to be emotionally strong. If you are emotionally strong in your mindset also and emotionally also, then that will automatically reflect your health also in a positive way. You're very right. Dekho, what I feel is to look after ourselves, so everybody has been teaching us that right from our childhood, how to look after our physical self, eat, sleep, walk, talk, be busy, अपनी physical health का ख्याल रखना. But nobody has ever spoken to us about emotional wellness and emotional health and emotional resilience. And this is the need of the hour. We have to talk and learn about such things. Emotional wellness, like if you're happy with yourself, I think you're emotionally well, and it's very important to be happy with yourself. That should be the goal. Be happy and do all your work. And so we're taking up emotional wellness today, and then of course we'll take it up especially in the homemakers. But just let me come back to you and ask you, would you like to tell me any story of anybody who was emotionally unwell, who any story of a lady or a homemaker, anyone which inspired you to take up this challenge of talking about it, and then you have a course about it also? Yes. There are many stories about it because I personally do the counselings also for the
ladies, and as a parent coach also and as a coach also. So I have seen in, I won't take the name of that person, but I have seen in that family, the family is living in a joint family, and that lady is living in a joint family, and she is taking care of her in-laws also, of her husband also, of her child also. और बाद में सुनने को मिलता है, तू करती क्या है सारा दिन, करेक्ट। तेरा काम ही क्या है, आप तो कुछ करते ही नहीं हो, घर ही तो बैठे रहते हो. These are the statements when this hit any of the lady, the homemaker. They think कि हाँ हमारा काम तो is like a thankless job. हम्म। They don't feel like we appreciate. They don't feel like motivated. करेक्ट। That's why I took this thing कि why not to start with the homemakers, कि क्यों ना हम homemakers को ये बताएं कि इमोशनली स्ट्रांग कैसे होना चाहिए. आप ऐसे सिनेरियो में भी अपने आप को काम रख के आगे मूव फॉरवर्ड कर सकते हो, अपनी फैमिली का ध्यान रख सकते हो. करेक्ट। करेक्ट। I'm not saying to ignore the family, but to have that emotional strength in yourself कि आप उस चीज को कोप अप करके आगे बढ़ सको, क्योंकि अगर आप हो तो आप फैमिली का ध्यान रख पाओगे ना. अगर आप ही अपना इमोशनली स्ट्रांग नहीं रहोगे, तो हाउ विल यू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, जिसके लिए आप बार बार वो करते हो कि हाँ मेरे इन लॉज के साथ मेरे को ये रहना चाहिए, मेरे हस्बैंड के साथ मेरा ऐसा होना चाहिए, मेरे बच्चे को मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है, बट व्हाट अबाउट यू. बिल्कुल सो सही दैट कह रही वाज. हो प्रीति, बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि इमोशनल वेलनेस स्टार्ट्स विद यू। हमें कभी नहीं सिखाया गया कि यू हैव टू कीप योरसेल्फ हेल्दी एंड हैप्पी। हमें हमेशा, एटलीस्ट टू मी एज अ डॉक्टर, आई एम अ मेडिकल डॉक्टर, तो मुझे हमेशा बताया गया दूसरों की सेवा करनी है, ऑफ कोर्स करनी है, लेकिन साथ में ये किसी ने ऐड नहीं किया कि अपना भी ख्याल रखो। नहीं, फिजिकल हेल्थ तो सब बोलते हैं, लेकिन मेंटली अपने आप को स्ट्रांग और इमोशनली वेल रखो, ये तो ना पहले किसी को पता था, ना अब भी ज्यादा लोगों को पता है। People are always thinking of changing or talking or criticizing or complaining about others. अपने बारे में नहीं सोचते हैं। और हमारी साइकोलॉजी तो ये भी कहती है ना प्रीति, कि अगर ये एक साइकोलॉजिकल टूल है, कि मतलब जो दूसरा कहता है दैट इज ऑल अबाउट हिम। ये पार्ट टू है इमोशनल वेलनेस का, जो हम काउंसलिंग्स में तुम और हम बताते हैं लेडीज को, कि अगर कोई ताना मार रहा है या गलत बोल रहा है या अपशब्द बोल रहा है, जब तक कि वो बिल्कुल अब्यूज, फिजिकल या इमोशनल अब्यूज के दायरे में ना आए, तब तक इग्नोर मारो। क्योंकि वो जो भी चीज है वो उनके बारे में है, उनको काउंसलिंग की जरूरत है, उनके अंदर नेगेटिविटी भरी है। तो इट्स नॉट अबाउट यू, अपने को तो ऊपर और खुश रखो। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चेंज मेकर था मेरी लाइफ में, ये वाली बात समझना मुझे भी बहुत देर से समझ आई। मैं भी बहुत इमोशनल सेंसिटिव थी, आई वॉज ऑलवेज बॉदर्ड अबाउट व्हाट पीपल आर टॉकिंग। अभी भी हम लोग यही सोचते हैं दूसरा क्या कहेगा, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। तो यस. ये जो होम मेकर्स हैं, हम सब होम मेकर्स हैं, है ना भाई, घर का काम तो सभी को करना है, बट इसको मैनेज कैसे करना है कि वो भी मैनेज हो जाए और हमारी इमोशनल हेल्थ भी स्टेबल रहे, ताकि फैमिली ठीक तरह से चले चले। चाहे हम बाहर काम करते हैं, घर से काम करते हैं, या सिर्फ घर का काम करते हैं, तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कुछ बताएंगे कि अगर कोई लेडी सिर्फ घर का ही काम कर रही है, विच इज सो मच ऑफ इट टेक्स अप 24/7, और जो लेडी बाहर काम कर रही है और घर भी देख रही है, तो दोनों को कैसे मतलब अपना बैलेंस करना चाहिए लाइफ को, ताकि हैप्पीनेस रहे, उनके इमोशनली वेल रहे वो लोग। Firstly, I would appreciate your question. This is a very important question which you have asked. कि या। आप कैसे अपने आप को इमोशनली स्टेबल रख सकते हो जब आपके आसपास इतने सारे काम हैं, चाहे घर का है या ऑफिस का है. आई वुड सजेस्ट द फर्स्ट थिंग कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, करेक्ट। स्पेशली ऑल द लेडीज, चाहे वो वर्किंग है या हाउस वाइफ्स हैं, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए, अपना मी टाइम निकालिए. उसके अंदर यू कैन डू माइंडफुल एक्सरसाइजेज लाइक योगा, मेडिटेशन. वो नहीं तो मेडिटेशन डजंट मीन्स कि आप ओम चैंटिंग लगा लो या कुछ लगा लो, ध्यान लगाओ. कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान नहीं लग पाता, हमारा फोकस हम्म। नहीं हो पाता. तो हम्म। वॉट एवर यू लाइक, चाहे सिंगिंग, डांसिंग, एनीथिंग, आप 5-10 मिनट उस चीज के लिए टाइम निकालिए एंड डू दैट. कोई देख रहा है देख रहा है, कोई नहीं तो नहीं, मतलब अकेले में अपने लिए वो टाइम निकालिए. यू अपना मी फील, टाइम, अपना मी टाइम। हाँ। यू विल फील लाइक मोटिवेटेड. इफ यू लाइक रीडिंग बुक्स, बुक्स या। पढ़ लीजिए. या। मीन्स दैट विल गेन योर नॉलेज ऑल्सो, प्लस आपको फॉर द टाइम बिंग उस चीज से या उस टाइम शेड्यूल से हट के कुछ नया करने को देगा. एंड करेक्ट। देन व्हेन यू बाउंस बैक टू दैट रूटीन, तो आप एकदम फ्रेशनेस के साथ होंगे. या। फिर आपके साथ न्यू आइडियाज होंगे कि हाँ मैं ये काम को ऐसे ऐसे प्रायोरिटाइज करूं, ऐसे ऐसे ये करूं,
पहले मेरे लिए ये जरूरी है, फिर मेरे लिए ये, फिर आपका प्रायोरिटाइजेशन भी होगा, टाइम मैनेजमेंट भी आएगा, और सारी चीजें आपकी सेट बैठ। ठीक है, वेरी करेक्ट। और अपने आप को रिमाइंड कराते रहो कि मैं इतनी सारी स्किल्स भी सीख रही हूँ, मैं मैनेज भी कर रही हूँ, मल्टीटास्किंग भी कर रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट भी कर रही हूँ, और मैं दूसरों को हेल्प भी कर रही हूँ, क्योंकि जब आप किसी को कुछ देते हो तो यू गेट इट मोस्ट। सो इफ यू आर गिविंग एंड सर्विंग समवन, आई थिंक it's a big boost up for your morale and your happiness. And thirdly, I would also like to, I always tell I always tell my clients who come to me that be creative. मतलब जो भी देखो, सब लोग सब कुछ वही काम है, बार बार करने ही पड़ते हैं। ऑफिस में भी वही काम है, सब जगह वही काम होता है, घर में भी वही खाना, दाल सब्जी रोटी सफाई। बट अगर हम क्रिएटिव हो जाए, अगर हम हर चीज में कुछ नया करने का नया तरीका, नई सब्जी बनाने का तरीका, या नए रास्ते से ऑफिस जाने का तरीका, या नए लोगों से, मतलब इफ यू आर क्रिएटिव इन वट एवर एंड यू टेल योर सेल्फ कि मैं आज कुछ सीखा है, दैट्स अ बिग बूस्ट अप फॉर यू। घर पे भी, यस। घर पे भी क्रिएटिव रहो तो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आपको लगता है आज मैंने ये चीज ऐसे सीखी, ये मैंने ऐसे करी, उससे मैंने ऐसे बोला। तो आई थिंक दैट इज, क्रिएटिविटी इज अ वेरी पॉजिटिव बूस्टर ऑफ इमोशनल वेलनेस, है ना। ट्रूली एग्री। अगर कोई इमोशनली अनवेल है, होम मेकर, तो आपने ये कुछ टिप्स दी, आपने बोला कि वो कुछ मी टाइम निकाले, है ना, है ना, मी टाइम निकाले और अपने को क्रिएटिव रहे। और कुछ आप बताएंगे इसमें, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग एल्स टू इट? जैसे आपके होम मेकर्स में इट्स जनरल सिचुएशन, कभी बहू की सास के साथ नहीं बनती, या हस्बैंड के साथ नहीं बनती, या आपके बाकी इन लॉ सिस्टर इन लॉ है उनके साथ नहीं बनती। तो कीपिंग इन माइंड योर रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट को और सामने वाले की रिस्पेक्ट को, क्योंकि वो रिलेशन ही ऐसा है कि आप कुछ उसमें नहीं कर पाओगे। स्टार्ट सेटिंग द बाउंड्रीज, ये लिमिट है, इस टाइम तक मैं यहाँ पे इतना कोऑपरेट करूंगी। आस्क फॉर द हेल्प ऑल्सो, एंड दे आर योर्स ओनली, मीन्स आपकी फैमिली है तो दे विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। आस्क फॉर द हेल्प। जैसे आपने एक चीज अभी पूछी कि हाँ हम टिप्स में क्या कर सकते हैं, आई सेड एक तो मी टाइम हो गया, एक बाउंड्री हो गया, दूसरा आप फैमिली टाइम निकाल के उसमें सबके साथ जो है बैठ के सेट कर दीजिए कि हाँ ये मैं ये काम कर सकती हूँ, आप ये काम कर दीजिए, आप ये काम कर दीजिए। टेक द हेल्प, वर्क एज अ टीम, डोंट टेक इट एज अ सोलो। लेकिन सोलोप्रेन्योरशिप करने जाएंगे तो सारा का सारा टेंशन आप खुद ही ले जाएंगे। हाँ, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ लेडीज हु आर सो फिनिकी, और ये बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण है लेडीज में, स्पेशली अगर होम मेकर्स हैं। वो किचन में किसी को नहीं आने देंगी, मेरा किचन है, मेरी सफाई है, बच्चे गंदा कर देंगे, हस्बैंड गंदा, तो हस्बैंड बेचारा कुछ सीख पाता है ना, बच्चे कुछ सीख पाते हैं उनके सफाई के चक्कर में। सो डोंट गो इनटू ओसीडी, डोंट गो इनटू ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स एंड अबाउट क्लेanliness, and not let other people, like Preeti said, ask for help एंड डिसेंट्रलाइज। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर भी पूरी देश को अकेला ही थोड़ी चला रहे हैं, उन्होंने डिफरेंट पोर्टफोलियोज दे दिए ना डिफरेंट लोगों को, तो वो और लोग मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं उनके लिए, तभी तो चीज आगे बढ़ रही है। घर को भी आप डिसेंट्रलाइज करिए, प्रीति ने बोला, and let other people also share. Then only, because as I said, my podcast is about sharing and caring, then only care if they share. And it starts with the mother. The mother is the backbone of the family. ये देखा गया है कि if a mother is happy, that family is going to be happy. So बहुत जरूरी है कि अपने अंदर हैप्पीनेस लाना, because that will automatically have a ripple effect and that will go to your children. लाइक आई, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, मुझे इन बातों, मुझे सबसे बड़ा दुख ये लगता है प्रीति, नोबडी टोल्ड मी एंड अबाउट दीज थिंग्स व्हेन माय चिल्ड्रन वर ग्रोइंग अप। सो आई वाज अ वेरी एंग्री मदर, एंड आई वाज, बिकॉज वर्क, ये वो टाइम मैनेजमेंट होता नहीं था, सो आई वाज वेरी एंग्री एंड आई यूज्ड टू बी वेरी इरिटेटेड। बाद में जब मेरे बच्चे बड़े हुए, तो व्हेन दे ग्रू अप दे वर एंग्री एंड इरिटेटेड टू, so then I had to go back and counsel them, but then they told me, but you were like that. So the children point the finger back to you. So अब उनको बाद में उनसे बात करके ठीक करो, या शुरू से उनको ठीक ब्रिंग अप करो, दैट ओनस इज ऑन द मदर। अब तो नॉलेज है, वो आपके बच्चे वही करेंगे जो आप करते हैं, दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड आपने रिलेशनशिप्स के बारे में बताया, वेरी वेरी वाइटल। तो इन रिलेशनशिप्स में आपने कहा बाउंड्रीज रखो, बैठो, काम डिस्ट्रीब्यूट करो, सब में इमोशनल वेलनेस आएगी, है ना। अभी मेरे पास एक केस आया था प्रीति, जस्ट बिफोर आई स्टार्टेड दिस वेबिनार। इट वाज अबाउट अ चाइल्ड हु वाज
वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो मैं सीबीएसई की काउंसलर भी हूँ यहाँ पे। तो वो ही वॉज टॉकिंग अनाप शनाप एंड द पेरेंट्स गॉट वेरी स्कैर्ड कि वो क्या क्या बोल रहा है, ये कर लूंगा, वो कर, थ्रेटन कर रहा था। तो दे केम टू मी। बट मैंने देखा द पेरेंट्स वर वेरी कूल एंड काम, बिल्कुल एजिटेटेड नहीं थे, स्ट्रेस नहीं थे, एंड दे टुक द राइट डिसीजन ऑफ कमिंग टू अ प्रोफेशनल फॉर हेल्प। जब हमने उसकी काउंसलिंग करी, तो उससे क्या हुआ, द होल थिंग सेटल डाउन एंड एवरीवन वेंट बैक हैप्पीली। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इमोशनल वेलनेस इन मदर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप्स में और कुछ आप ऐड करना चाहोगे? रिलेशनशिप में जैसे अब हस्बैंड वाइफ के बीच में, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग है, हाँ। तो दे कैन डिवाइड देयर टास्क फॉर द होम ऑल्सो, एंड ऑफिस में तो अपना अपना रोल वो लोग कर ही रहे हैं। हाँ। तो फॉर द होम ऑल्सो, फॉर टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन ऑल्सो, दे कैन डिवाइड देयर टास्क कि हाँ ये टाइम पे ये काम मैं कर सकता हूँ, ये टाइम पे ये काम आप करो। दे कैन हैव दैट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। वंस इन अ वाइल कभी ऐसा हो गया दोनों में से किसी की तबीयत खराब हो गई, तो नेक्स्ट इज दैट मच इमोशनली अटैच कि हाँ हम कर लें, उस कॉपरेशन में आके हम उस चीज को कर लें। तो दैट इज द मेन थिंग कि आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना चाहिए। बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, आप अपना काम जितना कर सकते हो, जैसे प्रीति ने बोला, टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी एंड केपेबिलिटी आप करो। अपना मी टाइम भी रखो, आप काम को एंजॉय करते हुए करो। एंड हीन भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं ये नहीं कर पा रही, या मैं ये, और कंपैरिजन की वो कर रहा है। बिकॉज आफ्टर ऑल लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस, है ना प्रीति? हमारी चॉइस है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आपका बहुत मन है, ये होम मेकर्स के लिए है कि आप भी बाहर काम करें, तो इट्स नेवर टू लेट। आप कोई भी स्किल सीख के कुछ ना कुछ कर सकते हो, घर से भी और बाहर से भी। क्यों प्रीति? बिल्कुल बिल्कुल। वी आर सीन इन दिस कोरोना ओनली, मतलब जितने लोगों को कोई मतलब एजुकेशन भी इतनी नहीं थी, जिनकी एकेडमिक्स में कोई ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, उनके स्किल्स इतने, चाहे आप मतलब अचार पापड़ ही देख लो, वो बाकी तो सारी चीजें इट्स अ नॉर्मल थिंग कि हाँ जिनको वो तक बनाना आता है दे कैन रन अप देयर बिजनेस आल्सो इन या दैट। एंटरप्रेन्योर्स तो बन गए सबके सब, सो मेनी ऑफ देम। सो राइट। ये छुपे हुई चीजें होती हैं हमारे में, वी कैन ऑलवेज ब्रिंग देम आउट एंड डेवलप ना। कुछ टर्म्स होते हैं जैसे इमोशनल वेलनेस ना, हैप्पीनेस, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में आपके हैं, आप खुश हो। लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ एक टर्म होता है इमोशनल रेगुलेशन, कि भाई जब आप नाराज हो तब आप क्या करो। भाई इमोशंस है, नॉर्मल लाइफ का एक पार्ट है, आएंगे तो, गुस्सा भी आएगा, नारा वो भी, चिड़चिड़ापन भी, दुख भी होगा, खुशी भी होगी। तो इन इमोशंस को रेगुलेट करना, इनके बारे में जानना, अपने बारे में कि मेरा ये इमोशन है, और इनको रेगुलेट करना सीखना, उसके कॉज पे जाना कि ये आया क्यों, मैं क्या कर सकती थी जो बेटर होता, और ये इमोशन को मैं कैसे मैनेज करूं। ये सारी चीज सीखना बहुत जरूरी है। आप लोग पढ़िए, जानिए, वर्कशॉप्स अटेंड करिए। और अगर गुस्सा, चिड़चिड़ाहट है, तो उसको कैसे मैनेज करके हैप्पीनेस लाना है, दैट इज ऑल इन योर हैंड्स, इमोशनल रेगुलेशन। और इसके साथ जैसे प्रीति ने अभी शुरू में बताया, रिजीलियंस, हम बाउंस बैक कैसे करते हैं, इमोशनल रिजीलियंस। और सबसे लास्ट टर्म मैं बताऊंगी इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल जो बहुत जरूरत है इसकी, इमोशनल इंटेलिजेंस की। अपने इमोशंस को समझना कि मैं गुस्सा मैं हूं, चिड़ी हुई मैं हूं, प्रॉब्लम मेरी है, मुझे अपने को ठीक करना है। और दूसरे के इमोशंस को भी समझना कि इस समय ये गुस्से में है, इसलिए ये ऐसे बोल रहा है, ये ऐसा ऐसा ये गुस्से में कह रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स इमोशंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, इट्स अ पार्ट ऑफ इमोशनल वेलनेस, है ना प्रीति? इसके लिए आई वुड लाइक टू ऐड ऑन कि सामने वाले की इंटेंशन को पकड़ना चाहिए बजाय कि उनके वर्ड्स को। द काइंड ऑफ थिंग यू हैव शेयर्ड कि हाँ गुस्सा आया है, तो गुस्सा आया, वर्ड्स जो थे ठीक है बोल दिए, लेकिन वो क्यों आया, उसके पीछे का इंटेंशन क्या था। कभी ऐसा होता है जैसे हस्बैंड वाइफ में दोनों में झगड़ा होगा, दे विल बी केयरिंग फॉर ईच अदर, बट वो गुस्से में एक दूसरे को ऐसा कुछ बोल जाएंगे कि बाद में समझ में आएगा अच्छा मेरी केयर कर रहे थे ना इसलिए मुझे ऐसा बोल दिया। तो व्हाई नॉट एट दैट टाइम ओनली। मतलब ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इट हैपेंस इन एवरी रिलेशन। अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों को, बच्चे अगर कुछ बोल जाते हैं तो डोंट टेक इट ऑन योर ईगो कि हाँ मेरे से छोटी है, मेरे से छोटा है, मेरा बेटा है बेटी है तो ऐसा कैसे बोल दिया। करेक्ट। नहीं, पहले आप उस चीज को समझिए कि उसका इंटेंशन क्या था। क्या उसके सराउंडिंग में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से वो इस टाइप का रिस्पॉन्स आपको मिला या रिएक्शन आपको मिला, वर्क ऑन दैट थिंग।
वर्क ऑन दैट प्रॉब्लम, और नॉट कि उसके लिए चीजों अपनी कम्युनिकेशन करनी। बहुत जरूरी है, बात करनी होती है एक दूसरे से। सो प्रीति, अब हमारे पास थोड़ा ही टाइम बचा है वेबिनार का। आप एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हो इमोशनल वेलनेस होम मेकर्स के लिए, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? क्यों? I'm starting this course from 28th of April, the coming Monday. और ये 5 days का कोर्स रहेगा फॉर द लेडीज हु आर द होम मेकर्स। तो कैसे आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कैसे अपने स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर, इस टाइप के इश्यूज को टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, हैप्पी फैमिली लाइफ कैसे जी सकते हैं, उसके बारे में वी विल डूइंग सम ऑफ द अदर एक्टिविटीज ऑल्सो। और कुछ ना कुछ मैं ऐसा बताऊंगी भी जिसके वो डेफिनेटली आपको होगा ही 1 आवर का, मीन्स पर डे 1 आवर का कोर्स होगा, बट यू विल डेफिनेटली गेट अ ग्रेट टेक अवे फ्रॉम दैट। बिल्कुल। तो हफ्ते दिस भर इज अ का शॉर्ट कोर्स, थिंग आई वुड लाइक टू। 1 हफ्ते का कोर्स है? कितने दिन का हाँ है? जी, 1 हफ्ते फाइव का डेज कोर्स है, जरूर ज्वाइन करिएगा, बहुत मिनिमल अमाउंट पे है और उससे आप कुछ टेक अवे करके ही जाएंगे। आई सजेस्ट दैट एवरीबडी ज्वाइन इट। एंड द अदर थिंग आई वुड लाइक टू टेल कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके मन में या घर में, आपको लगता है अनबन है रिलेशनशिप्स में, हस्बैंड वाइफ में, मैरिटल काउंसलिंग है या आपकी बन नहीं रही है या आपको एंगर इश्यूज हैं, तो थेरेपी काउंसलिंग लेना जरूर, इसको आप एक इम्पॉर्टेंट इश्यू मानिए लाइफ का। क्योंकि बहुत सारी चीजें दूसरों से बात कर, एक प्रोफेशनल काउंसलर से बात करके, जैसे प्रीति है, मैं हूँ, नॉट फ्रॉम एनीवन, प्रोफेशनल और क्वालिफाइड होना चाहिए, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं और आप एक हैप्पी लाइफ, आप इमोशनल वेलनेस की तरफ बढ़ जाते हो। सो एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन। और सोल्यूशन के हम लोग अपने नंबर्स और उसमें भी नीचे दे देंगे प्रीति। देर इज एन ऑप्शन वेर वी कैन गिव आवर डिटेल्स ना। हाँ। यस यस। हाँ, तो उसमें हम दे देंगे इसमें। और आप उसमें प्लीज कभी भी चाहें तो आप कर सकते हैं। मेरा एक एनजीओ है परी फाउंडेशन। हम लोग इमोशनल वेलनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस में स्कूल्स में और कॉर्पोरेट्स में वर्कशॉप्स करते हैं। और हम लोग 1-to-1 काउंसलिंग्स करते हैं, मैं टेली काउंसलिंग और ई काउंसलिंग भी करती हूँ। प्रीति का कोर्स आने वाला है बहुत जल्दी, प्लीज उसको ज्वाइन करिएगा। एंड सो दैट यू कैन लर्न हाउ टू लिव अ हैप्पियर लाइफ। यस प्रीति। Yes, and one more thing I would like to add कि we will be coming up with the questionnaire also. क्वेश्चन आंसर सेशंस भी होंगे, जैसे मैं और मैम हैं तो हम लोग इस चीज के क्वेश्चन आंसर सेशंस पे भी आने वाले हैं। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर इंटेलेक्चुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क अस एंड वी आर थैंकफुल टू हेल्प यू आउट। करेक्ट, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। ऐसे पॉडकास्ट हम लोग और लेके आएंगे प्रीति के साथ शेयर एंड केयर में। और आपको कुछ चाहिए किसी खास, इफ यू वांट अस टू टॉक ऑन एनीथिंग इम्पोर्टेंट स्पेशल, बोलिएगा, विल टेक इट अप इन आवर सीरीज। सो आई थिंक दैट इज एनफ फॉर टुडे प्रीति। आई थिंक वी कैन साइन ऑफ नाउ। So we'll Yes. put in our details at the end of the session. Anything else you want to tell, Preeti? With the course details, I'll be sharing one form link also. You all can fill up that form Yeah, and you can. So correct. it And was a my great talk. my mobile number and my email is also there in the comment section. You can connect to me for any problems you have. I have we have a helpline also where we are trying to solve the queries. So I'll put that number also. And of course, 1-to-1 counseling sessions are there. And if you want a workshop or anything in your corporates or in your schools, call us, because believe me, they really help and they empower children and empower women and empower everyone. So signing off, Share and Care podcast. I'm your host, Dr. Sona Kaushal, a neuropsychologist, a child psychologist, and a corporate trainer. And my guest, Preeti Sachdeva. She is, yes, Preeti? NLP coach, parenting coach, DMIT practitioner, and counselor. So signing off. Hope to see you all again soon. And please put your comments in our comment box. Thank you so much for joining us. Thank you for joining us.